آئین میں آزادی اظہار کی حدود متعین ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ جو لوگ آزادی رائے پر عائد واضح قیود کی برملا پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں، دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارتی جارحیت پر دنیا کی خاموشی وہاں گونجنے والی آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ کشمیری بھائیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ مزید کہا، غزہ جنگ اس بات کی تازہ مثال ہے کہ جنگیں کیا کیا مصائب سامنے لا سکتی ہیں۔ غزہ میں بوڑھوں، خواتین اور بچوں کا اندھا دھند قتل اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کیڈٹس میں ایوارڈ بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آئین میں آزادی اظہار کی حدود متعین ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا، جو لوگ آزادی رائے پر عائد واضح قیود کی برملا پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارتی جارحیت پر دنیا کی خاموشی وہاں گونجنے والی آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ مزید کیا تفصیلات جانتے ہیں خالد محمود سے۔ خالد بتائیے گا۔ جی دیکھیں جی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج پاکستان ایئر فورس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اس سے خطاب کیا تھا اور انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہماری امیدوں کا مرکز ہیں، آسمانوں کے محافظ ہیں اور علاقائی یکجہتی کے ضامن ہیں۔ انہوں نے اس کے علاوہ جو اس کردار کے حوالے سے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا کردار، آپ کی قابلیت اور آپ کی خوبیوں سے مزین زندگی جو ہے وہ گزاریں گے اور آپ کا طرز عمل صرف آپ کی ذاتی اخلاقیات بلکہ قابل احترام ادارے کے لیے بھی غیر معمولی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مادر وطن کے دفاع، عزت اور وقار کے لیے کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 میں واضح طور پر آزادی اظہار رائے کی جو حدود ہیں وہ متعین کی گئی ہیں اور جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد کی گئی واضح قیود کی برملا پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلحے کی دوڑ سے ہمارے خطے میں طاقت کا توازن جو ہے وہ بگڑنے کا امکان ہے۔ مصنوعی ذہانت، روبوٹس اور دیگر مخصوص ٹیکنالوجی فضائی طاقت کے استعمال کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دائرہ کار کو بھی وسعت دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بالکل واضح طور پر آج ایک مسافر کہا کہ پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے سیاسی اور اخلاقی حمایت جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ انہوں نے غزہ کی جنگ کا بھی ذکر کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بات کی تازہ مثال ہے کہ جنگیں کیا کیا مصائب سامنے لا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں بوڑھوں، خواتین اور بچوں کا اندھدھند قتل عام کیا گیا اور ان کا تشدد کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں یہی صورتحال ہے اور پاکستان اس کے اوپر ہمیشہ اپنی حمایت اور سیاسی اور اخلاقی حمایت جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ جی خالد محمود، آپ کا شکریہ۔ بلیٹن میں بات کرتے ہیں دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم قومی T20 ٹیم کی قیادت کریں گے۔ حارث رؤف، حسن علی اور سلمان علی آغا کی واپسی۔ سائم ایوب، محمد رضوان، عثمان خان، افتخار احمد اسکواڈ کا حصہ۔ شاہین افریدی، نسیم شاہ، محمد عامر، ابرار احمد بھی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ اعظم خان، فخر زمان، عباس افریدی بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ حسن علی، افتخار احمد، اماد وسیم، محمد عباس افریدی، محمد عامر، محمد رضوان، محمد عرفان خان، نسیم شاہ، سائم ایوب، سلمان علی آغا، شاداب خان، شاہین شاہ افریدی اور عثمان خان، یہ 18 ہم نے سلیکٹ کیے ہیں آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے۔ 2 لڑکے جو ہیں وہ زمان اور اسامہ میر، ان کی جگہ 2 لڑکے ہم نے اور لیے ہیں، اس میں حارث رؤف ہے، حسن علی ہے، اور پچھلی جو ہمارا نیوزی لینڈ کے خلاف ہم نے میچز کھیلے ہیں اس میں 17 کا اسکواڈ تھا، اس میں ایک ایکسٹرا ڈالا ہے، وہ آغا علی سلمان ڈالا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے یوسف انجم ہمارے ساتھ ہیں۔ یوسف، کہیے گا، دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ جی، ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان ٹیم نے 7 میچز کھیلنے ہیں جس کے لیے آئرلینڈ اور انگلینڈ کو پاکستان ٹیم کا دورہ کرنا ہے۔ 7 مئی کو پاکستان کی ٹیم کو آئرلینڈ روانہ ہونا، جہاں 10 سے 14 مئی تک 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے، جس کے لیے پاکستان کی سلیکشن کمیٹی نے ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے 70 رکنی ٹیم نے حصہ لیا تھا، جس میں سے
जिसमें से इस्लामा मीर और जमान खान को ड्रॉप किया गया, उनकी जगह हसन अली, हारिस रऊफ और उसके साथ साथ सलमान अली आगा को अब 18 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। जो टीम का इंतखाब किया गया उसमें बाबर आजम कप्तान, इब्रार अहमद, आजम खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, अमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, शहनशाह अफरीदी और उस्मान खान शामिल हैं। सेलेक्टर वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की टीम का इसमें से बेहतरीन खिलाड़ी इनका इंतखाब किया गया और उसको भी उम्मीद की जा सकती है कि वर्ल्ड कप से पहले 19 या 20 मई को वहाँ पर इंग्लैंड में ही कौमी टीम का ऐलान करेंगे जो वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। जी यूसुफ अंजुम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कराची वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और आपको बताएं कि इजलास में सीनियर वजीर शर्जील मेमन, वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार शरीक हुए। कराची मुर्तज़ा वहाब, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी शिरकत की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अमन व अमान पर कल वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास किया। सदर मुमलिकत ने कच्चे में डाकू के सहूलतकारों को गिरफ्त में लाने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 32वां इजलास। कराची में अमन व अमान कायम करने और स्ट्रीट क्राइम से निमटने के लिए बड़े फैसले। इजलास में सीनियर वजीर शर्जील मेमन, वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और मेयर कराची समेत आला हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने शुरका को बताया, सदर आसिफ जरदारी ने अमन व अमान पर 1 मई को वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास किया। सदर मुमलिकत ने कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को गिरफ्त में लाने और मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। मुराद अली शाह ने कहा, स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के लिए जामिया हिकमत अमली बनाई है। इन तमाम मुहरकात पर काम हो रहा है जो स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के असबाब हैं। सिंध हुकूमत सदर मुमलिकत के अहकामात पर मुकम्मल अमल करेगी। शर्जील नाम मेमन ने कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ कोऑर्डिनेशन में है। कोर कमांडर कराची ने भी मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला सिंध ने एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दीगर सूबों और वफाकी इदारों के साथ मिलकर ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की है। मोहम्मद सलीम, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची पुलिस ऑफिस अमले का एक मुल्जिम मदरसे का मौलम था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। हमले में मौलम का मुलविस होना तशवीशनाक है। सादा कपड़ों में किसी भी शख्स का गार्ड असलहे की नुमाइश नहीं रख सकता। असलहे की नुमाइश पर पुलिस कल से एक्शन लेगी। मनशियात फरोशों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कराची केपीओ में अटैक हुआ था, उसमें जो लोग मारे गए उसमें एक शख्स की जब पूरी रैकी की गई तो कराची केपीओ अटैक का वो जो शख्स था वो एक मदरसे में टीचर था, तो इस पे शदीद तशवीश पाई गई। जहाँ पे इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन एलिमेंट्स की मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ मॉनिटरिंग होगी, इस तरह के एलिमेंट को जो है उनके नापाक अज़ाम को नाकाम बनाया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तमाम इदारे उन्होंने बहुत सीरियसनेस के साथ इस मंशियात फरोशों के खिलाफ एक क्रैकडाउन का फैसला किया है। जितने भी मंशियात फरोश हैं उनके मैं समझता हूँ कि बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मरियम नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। अमरीकी सफ़ीर ने अवाम दोस्त प्रोजेक्ट पर तेज़ी से अमल दरामद करवाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशों को सराहा। अमरीका गुर्बत के खात्मे और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मज़ीद काम करना चाहता है। अमरीका और पाकिस्तान के इक़्तिसादी ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया, पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। ये भी कहा गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद। मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान खुसूसन कराची में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। कहा, चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाना हमारा फर्ज है। चीनी कौंसल जनरल ने सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची में चीनी कौंसलेट आमद। मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात।
IMF के साथ नए प्रोग्राम मुज़ाकरात रवां माह शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक 6 से 8 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात होंगे। आइंदा बजट IMF के नए प्रोग्राम के तनाजुर में तैयार होगा। FBR की जानिब से 1 लाख से कम पेंशन वालों को भी टैक्स नेट में लाया जाने का इम्कान है। तमाम पेंशनर्स पर 10% की यकसां शरह से टैक्स आयद करने की भी तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको बताते चलें इस हवाले से कि नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात रवां माह शुरू होंगे। अब आपको बताएंगे गैर ज़रूरी गंदम इंपोर्ट की तहकीकात के दौरान हैरान कौन इंकशाफात। ज़राए तहकीकाती कमेटी के मुताबिक विफाकी ब्यूरोक्रेसी ने मुर्गियों की खुराक के लिए दरकार गंदम को भी शॉर्टफॉल में शुमार कर लिया। 24 लाख टन के मुतनासिब तखमीना में 12 लाख टन गंदम फीड मिल्स के लिए शुमार की गई। पोल्ट्री फीड की तैयारी का बुनियादी खाम माल गंदम नहीं मकई होती है। पंजाब में चंद साल कबल फीड मिल्स को गंदम खरीदारी के लिए इजाजत फौरी तौर पर मनसूख कर दी गई थी। गैर जरूरी गंदम इंपोर्ट की तहकीकात के दौरान हैरान कौन इंकशाफात। बुलेटिन में बात करते हैं PAF असगर खान एकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा, आइन में आज़ादी इजहार की हदूद मुतय्यन है। जो लोग आज़ादी राय पर आयद वाज़े क़ायूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। PAF असगर खान एकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। एयर डिफेंस कोर्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर सार्जेंट हबीबुर रहमान को चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी दी गई। PAF ट्रॉफी कैडेट खुशहाल खान खटक को दी गई। नेवल कैडेट सार्जेंट अमानुल्लाह को चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ट्रॉफी दी गई। स्क्वाड्रन ऑफिसर जुनेद मलिक को एजाजी शमशीर अता की गई। स्क्वाड्रन ऑफिसर जुनेद मलिक। तकरीब के दौरान पाक फिजाइया के तैयारों ने शानदार फ्लाई पास्ट किया और फिजाओं को रंगों से भर दिया। पास आउट होने वाले दस्तों ने शानदार परेड का मुजाहरा किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने के खिलाफ केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला और स्पीकर KP असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर KP असम्बली की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने के खिलाफ केस की समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला और स्पीकर KP असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस सुना, इस्तफसार किया। एक तरफ आप कहते हैं अदालतों में सिक्योरिटी खतरा है, जेल में समाअत होगी, दूसरी जानिब आप कहते हैं जेल में सिक्योरिटी खतरा है, घर मुंतकिल करते हैं। मेरा तो ख्याल है ये पहले से तय किया जा चुका था कि बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल करना है। क्या आपको लगता है कि नोटिफिकेशन 1 मिनट में तैयार हो गया? आपको नहीं लगता कि ये पहले से तयशुदा था कि बुशरा बीबी को मुंतकिल करना है? पूछा, बुशरा बीबी को घर भेजने के बाद कितनी खवातीन को अडयाला जेल लाया गया? जो खवातीन बाद में लाई गई उन्हें भी घर भेज देना। तो इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। कराची में पाकिस्तान कस्टम्स की जिना इंटरनेशनल टर्मिनल डिपार्चर लॉन्च में कार्रवाई। 9.5 किलो सोना बरामद। एडिशनल कलेक्टर के मुताबिक 19 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात बरास्ता दुबई जनूबी अफ्रीका जाने वाली फैमिली से बरामद हुए। भारी मिकदार में सोने के जेवरात स्मगल होने की खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी। मुकदमा दर्ज करके बरामद होने वाले सोने के जेवरात को जब्त कर लिया गया है। कराची में पाकिस्तान कस्टम्स की जिना इंटरनेशनल टर्मिनल डिपार्चर लॉन्च में कार्रवाई। 9.5 किलो सोना बरामद। एडिशनल कलेक्टर के मुताबिक 19 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात बरास्ता दुबई जनूबी अफ्रीका जाने वाली फैमिली से बरामद हुए। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।